last class or up to the last class we were discussing about chromosomal basis of inheritance, right? In chromosomal basis of inheritance we discussed all the required details about chromosome, how it is inherited from one generation to next generation, what are the disorders that are related to variations or mutations which occur in humans, and various other things like pedigree analysis and traits and types of sex determination and various other things, right? Now we are moving on to the another chapter that is related to human physiology. Is it okay? If you remember, we have already described many things in human physiology, like if you see circulation or say circulatory system, then excretion or say excretory system, then neural control and coordination. Okay, circulatory system, excretory system and nervous system along with the hormonal system that is under the heading coordination are the things that are already been described under the heading human physiology. Is it okay? Now, because your syllabus has changed, now the new chapter of physiology, that is breathing and respiration or exchange of gases, was the previous name for this chapter. Now it is in your 12th standard under the heading respiration and circulation. Is it okay? So things are now quite changed. Okay, syllabus and content is similar, but the name of chapter has been changed. Like previous name was breathing and exchange of gases or breathing and respiration, but now it will be respiration and circulation. So what they have done is they clubbed the two chapters, of which one part we have discussed already, circulation, right? So the next thing or the next physiological system to be discussed is respiration. Clear? Now don't get confused. We have described a separate chapter under the heading respiration, right? But that was metabolism, where we have seen the details of aerobic and anaerobic respiration via cycles like glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain, beta oxidation of fatty acids and HMP pathway and various other things. That is a respiration which occurs within the cell. Here in this chapter, we are primarily concerned with exchange of gases. Okay, exchange of gases between what? Between body and atmosphere. Here in this chapter, we are primarily concerned with the processes that are related to exchange of gases between body and atmosphere. Is it okay? Now, we need to understand or focus on some basic things when we discuss this chapter. Why we need to respire or why we need exchange of gases. So you all know that humans, as far as humans are concerned, they are obligate aerobes, means they are compulsorily aerobic organisms and require ऑक्सीजन इन अ कंटिन्यूअस सप्लाई, राइट? हम ह्यूमंस हैं और हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्योंकि पूरी तरह से ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हमको एटमॉस्फेयर से कंटिन्यूअसली क्या चाहिए? ऑक्सीजन का या फ्रेश एयर का सप्लाई। और हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की वजह से बनी हुई जो फाउल गैसेस है, मतलब यूजलेस बोलो या फिर वेस्ट गैसेस है, प्राइमरीली कार्बन डाइऑक्साइड,
उसको हमें कंटिन्यूअसली बॉडी से बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करना पड़ता है, और एटमॉस्फेयर से कंटिन्यूअसली हमें ऑक्सीजन रिच गैस हमारे बॉडी के अंदर लेनी होती है। तो ये जो बेसिक प्रोसेस है, फाउल गैसेस या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को बॉडी के अंदर से एटमॉस्फेयर में रिलीज करना और बॉडी के अंदर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन रिच गैस को एंटर करवाना, इसी को हम बेसिकली कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो कि एक फिजिकल प्रोसेस है जो ब्रीदिंग के थ्रू होती है। या ब्रीदिंग, इस पर्टिकुलर फिजिकल प्रोसेस से हम क्या अचीव करते हैं, हम हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड जैसी फाउल गैस को बाहर रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है और कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंडेंट है। तो ये सब करवाने वाली सिस्टम, एक सेपरेट डेडिकेटेड ऑर्गन सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम और सिस्टम फॉर एक्सचेंज ऑफ gases. Getting the thing? Now just have a look at some basic things that are written or you can see on the board. Read the first line. If you see, we all are aware of the fact that different living organisms need energy, no doubt in the form of ATP, as you already know, for performing different life activities, चाहे वो चलना हो, बोलना हो, लिखना हो या कुछ सोचना हो, हर तरह की लाइफ एक्टिविटीज के लिए हमें फ्री एनर्जी चाहिए जो हमें ATP से मिलती है। और ये सब जानते हैं कि ATP हमें किस पर्टिकुलर तरह की रिएक्शन से मिलता है, कैटाबॉलिक। और इस कैटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू ATP मिलने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन, क्योंकि हम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो फिर यही चीज यहाँ पे दिखती है तुमको कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हम यहाँ पे प्राइमरीली इस चैप्टर में बात करेंगे ह्यूमंस को सेंटर पॉइंट में रख के, लेकिन अगर हम देखें तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन प्राइमरीली दो तरह का होता है, एरोबिक एंड अनएरोबिक। नाम से हमको क्लियरली समझ में आता है कि एरोबिक जिसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जैसे कि हम में, और अनएरोबिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो विदाउट ऑक्सीजन को यूज किए ATP बना सकते हैं, राइट। इन दोनों ही तरह के ऑर्गेनिजम्स और उनमें होने वाले रेस्पिरेशन या मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। नेक्स्ट, एज फार एज एरोबिक रेस्पिरेशन इज कंसर्न, बिकॉज हम ह्यूमंस की बात करने वाले हैं और वो एरोबिक है, there is a need of constant supply of oxygen to the different body parts in a constant manner। मतलब बॉडी के अलग अलग हिस्सों को ऑक्सीजन की कंटिन्यूअसली जरूरत होती है, कॉन्स्टेंटली जरूरत होती है, और बॉडी में अलग अलग हिस्सों में बने हुए कार्बन डाइऑक्साइड को कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअसली रिमूव करने की जरूरत होती है। दैट्स व्हाट इज रिटन हियर। इज इट ओके? नाउ इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो या इवन ह्यूमंस हो, ये जो फंक्शन है मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का, दैट इज द फंक्शन ऑफ रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग इन ऑक्सीजन इज परफॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड और से डेडिकेटेड ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो ऐसा जो भी ऑर्गन है जो ये काम करता है उसे हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ गैसियस एक्सचेंज। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम में कौन सा प्राइमरी ऑर्गन ये काम करता है? लंग्स, राइट। तो हम हमारे केस में मतलब ह्यूमन की केस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसे कहेंगे? लंग्स को, राइट। अब जो भी ऑर्गन या जो भी ऑर्गन सिस्टम एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, उसमें मतलब उस पर्टिकुलर सरफेस या ऑर्गन में कौन से बेसिक फीचर्स होने चाहिए
या कैरेक्टर्स होने चाहिए। गेटिंग द थिंग, मतलब क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि जो ऑर्गन या जो ऑर्गन सिस्टम गैसियस एक्सचेंज का काम करेगी, उस ऑर्गन सिस्टम या उस ऑर्गन में कौन से फीचर्स होने चाहिए। तो पहला कि उस ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम का जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होना चाहिए, ताकि एक्सचेंज है ना, तो ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज हो, ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंटली एक्सचेंज हो, इसलिए एक्सचेंज वाले सरफेस का एरिया लार्ज होना चाहिए। उसके बाद सरफेस ऑफ एक्सचेंज शुड बी थिन, क्योंकि गैसेस है तो डिफ्यूजन से आएंगी और डिफ्यूजन से जाएंगी, इसीलिए जो सरफेस ऑफ एक्सचेंज है वो जितना थिन हो सके उतना थिन होना चाहिए। और वस्क्यूलर, मतलब अब सोचो कि लंग्स से ऑक्सीजन आया तो आएगा कहाँ, ब्लड में, और ब्लड के द्वारा उस ऑक्सीजन को बॉडी के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाएगा। तो फिर जहां वो ऑक्सीजन या जहां वो CO2 एक्सचेंज हो रहा है वहां पे ब्लड का सप्लाई रिच होना चाहिए, दैट इज शुड बी हाईली वस्क्यूलर सो दैट इट कैन बी परमिएबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड फाइनली जो सरफेस है एक्सचेंज वाला वो मॉइस्ट होना चाहिए, जैसे कि ह्यूमंस की केस में लंग्स क्या अंदर के सरफेसेस पे म्यूकस होता है। म्यूकस इज अ स्टिकी कंपाउंड और से स्टिकी सब्सटेंस दैट कीप्स द एरिया ऑफ एक्सचेंज मॉइस्ट, राइट। तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज है, लार्ज सरफेस एरिया, देन थिनर एंड हाईली वस्क्यूलर एंड शुड बी मॉइस्ट, ये तीन बेसिक प्रॉपर्टीज हमको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन ऑफ गैसियस एक्सचेंज में देखने को मिलेंगी या मिलती है। देन थोड़ा सा हम एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि भले ही हमको रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्राइमरीली ह्यूमंस में पढ़ना है, लेकिन हम अगर बात करें प्लांट्स की, तो एक लैंड प्लांट में एक हिस्सा जो हमको दिखता है वो सरफेस के ऊपर है, मतलब जमीन के ऊपर, जिसमें लीव्स है, स्टेम है, ब्रांचेस है, फ्लावर है और बहुत सारी चीजें हैं, राइट। और एक हिस्सा जो है वो जमीन के नीचे है, जहां पे प्राइमरीली हमको रूट्स देखने को मिलते हैं। और ये हो गया सरफेस, यहाँ है सॉइल और यहाँ है एयर, बराबर। अब इन हिस्सों को हम क्या कहेंगे, एरियल पार्ट्स, और इस हिस्से को क्या कहेंगे, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। अब ऑक्सीजन यहाँ पे भी है एयर में और ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, क्योंकि सॉइल हमेशा एरेटेड होती है, सॉइल के पोर्स के बीच ऑक्सीजन होता है डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो फिर क्या ऑक्सीजन लेने का तरीका या ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज रूट में और एरियल पार्ट्स में सेम है? नहीं। अगर आप लीफ में देखो तो लीफ में होता है स्टोमेटा। लीफ की बात करें तो लीफ या कोई भी ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे कि ग्रीन स्टेम या ग्रीन ब्रांच क्यों ना हो, या इवन फ्लावर का पेटल क्यों ना हो, ठीक है ना, फ्लावर का पेटल या ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट या फिर लीफ जैसा कोई हिस्सा किस पर्टिकुलर ऑर्गन या स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैरी आउट करता है? स्टोमेटा। स्टोमेटा दिन के समय ज्यादातर प्लांट्स में ओपन होते हैं और ड्यूरिंग नाइट दे आर क्लोज्ड। तो व्हेन दे आर ओपन, ऑक्सीजन goes inside the plant and CO2 goes outside the plant through stomata. So stomata is the organ of gaseous exchange for aerial green parts of the plant. अब प्लांट जब बड़ा हो जाए तो बहुत सारे प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से उनके सरफेस पे एक थिक टिश्यू डेवलप होता है जिसे बार्क कहते हैं। अब बार्क जिस भी प्लांट पार्ट्स में डेवलप होता है उनमें गैसियस एक्सचेंज का काम या गैसियस एक्सचेंज एक अलग ऑर्गन के थ्रू होता है जिन्हें
लेंटिसेल्स कहते हैं। मतलब स्टोमेटा का काम इन बार्क कंटेनिंग प्लांट पार्ट्स में कौन करता है? लेंटिसेल्स, राइट। तो फिर स्टोमेटा और लेंटिसेल्स एक ही कैटेगरी में आएंगे, कौन सी? ऑर्गन ऑफ गैसियस एक्सचेंज। उसी तरह से जो अंडरग्राउंड पार्ट है, रूट्स फॉर एग्जांपल, इनमें डायरेक्टली डिफ्यूजन की प्रोसेस से सॉइल के अंदर का ऑक्सीजन रूट के अंदर जाता है और रूट से डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल में जाता है, क्योंकि रूट्स में कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज नहीं होता। डायरेक्टली एपिडर्मल सरफेस के थ्रू ऑक्सीजन एंटर और CO2 रिमूव होता है, राइट। तो हम यहाँ पे इसको कहेंगे सरफेस ऑफ एक्सचेंज। जैसे यहाँ पे लेंटिसेल्स या स्टोमेटा को कहा था ऑर्गन ऑफ एक्सचेंज। उसी तरह से जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, मतलब जो पानी के अंदर हमेशा कंटिन्यूअसली पानी के लेयर के अंदर ही होते हैं, जिन्हें हम सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। सबमर्ज्ड मतलब डूबे हुए, हाइड्रोफाइट्स मतलब पानी के अंदर ग्रो होने वाले। तो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स के अंदर भी डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। उनमें भी स्टोमेटा, लेंटिसेल्स या ऐसा कोई भी गैसियस एक्सचेंज का स्पेशलाइज्ड या डेडिकेटेड ऑर्गन नहीं होता, सरफेस के थ्रू एक्सचेंज होता है। तो ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जो हमने प्लांट्स के लिए कही, वही आपको यहाँ पे मिलेंगी लिखी हुई, राइट। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट यू कैन सी? In case of land plants, the aerial parts has a structure like stomata through which oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. Then in case of roots, it is directly taken through surface. In case of woody plant parts, मतलब जिनमें bark होती है, bark, उनमें exchange of gases occurs through lenticels, and जो plants completely submerged होते हैं, उनमें gaseous exchange directly जनरल सरफेस के थ्रू होता है वाया डिफ्यूजन। ओके, तो ये कुछ एडिशनल चीजें हैं जो प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज के बारे में हम देख सकते हैं।